रेणु रना रना ना रेणु रेणु dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim. एंटरटेनमेंट से ऑडियंस की, कंटेंट से हम सब की और कलेक्शन से प्रोड्यूसर की। मुश्किल इस बिग बैग फिल्म्स फर्स्ट हिंदी फिल्म वेंचर। Mr. Ravinder Jeet Daria, a sound investor and a great businessman with a passion for filmmaking, has started this company. I'd like us all to clap for him and let us begin the concept of our It is with men like him who invest in films that we actually get to make movies that are fun, exciting, and of course, an element of horror. That brings me to the director. Rajiv Rua has been a director who has been making films one after the other, never stopping. I think all his actors vouch for him because they've all worked with him repeatedly. He's a man of few words and likes to hide, but I'd like him to come on the stage. There's one handsome man I always write, Rajneesh Dugal. Please come, Rajneesh. He's come here despite the fact that he has fever. An astonishing actor, Kunal Roy Kapoor. I'd like him to come on stage, please. Pooja Bisht, Nazia Hussain, Shafak Naz, please come. बेसिकली सब कहते हैं कि हॉरर फिल्म एक जैसी होती है, कोई भी फिल्म उठा के देखो एक जैसी होती है, लेकिन ये हॉरर फिल्म आपको कुछ अलग दिखेगी। इसकी यूएसपी ये है कि इसमें हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है और धारिया जी जिनकी ये पहली फिल्म है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पूरी पिक्चर यूरोप में शूट हुई है, गाने बहुत अच्छे हैं पिक्चर के, मेलोडी है वरदान और रवि चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे गाने दिए हुए पिक्चर के। और बाकी तो आप जानते हैं कुणाल, रजनी, बाकी आर्टिस्ट, ये सब का सपोर्ट से ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू वेरी मच। हाय, गुड आफ्टरनून गाइस। मुश्किल जैसा कि अनु हैड सेड दैट बहुत मुश्किल से बनी है एंड एक प्रोड्यूसर की मुश्किल दूर करेगी एक्टर्स की जो मुश्किल है। हम लोग शूटिंग के दौरान काफ़ी मुश्किलों से गुजरे, सो ऑल दैट इवेंचुअली हैज़ कम आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। We've seen the film and we've loved the songs and I hope that the audience also loves it. So we've come here and brought the film in front of you. आज हम audience तक सिर्फ एक audio launch लेकर आए हैं, कुछ गाने लेकर आए हैं, तो we are hoping that you all love it. And from there on, we starting our promotional campaign and we hope that you all support us. And thank you all for coming. Thank you for coming. Thank you for being here. I think the horror genre is something that is not completely explored in India. I think we constantly try to up the ante, and I think it's a very bold thing on part of Ravinder ji, on part of Rajiv to try and push in this horror space, because I think it's one genre that people really love to go to the cinema to really to see horror films and to really be in that dark room with other people and experience something together, because it's a very visceral sort of form of cinema which people really enjoy. So we hope that our endeavor has sort of paid off, and with some fabulous actresses as well, and we so and putting through a lot of difficulty. I know every film people say that it was very difficult to shoot. This one was particularly difficult because of some weather conditions and other things, but I think all in all, because of the support of our producer and our director, who it was astounding कि पहली फिल्म होकर उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की कि it was his 10th film, you know, and Rajiv is and I would say that for Rajiv ji, in the sense कि someone who really knows what he wants, exactly what he wants, and just wonderful experience working with him, and I got to do things कि जो मैंने पहले कभी नहीं की है, like the kind of songs that we have shot. I don't think I have ever or might never do again in my career. So thank you for that. But thank you, and it's been a wonderful experience, and thanks to everyone.
Good afternoon, everybody. Thank you so much for being here. My co-stars have obviously already said as much as they could about the film. उससे ज़्यादा तो हम बता भी नहीं सकते. लेकिन मुश्किल बड़ी मुश्किल से तो बनी थी. And I'm a very big die-hard fan of horror movies. So for me, it's very exciting कि I'm a part of a horror film. और मैं बहुत nervous हूँ because by the end of the day जब release होगी film और हम खुद जाएंगे as viewers to see, I hope we get some chills as well. जो ऐसा लगता है क्योंकि शूटिंग के टाइम पे तो काफ़ी चिल्स हमें बहुत महसूस हुए. -2 literally degrees में हमने शूटिंग की, तो बहुत सारे थ्रिल्स थे. We've tried to spook ourselves out also a lot. And it was really nice. Thank you. I'd like to thank you all again for being here, and I hope you all like the song, and I hope you all support us for this film. Really appreciate it. Thank you very much. And as I think सबने सब कुछ बोल ही दिया है, कुछ बचा नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए. But I'm really thankful to the producer of the film, director, and all the actors and actresses. They have really been helpful as it was my first film. And I'm really grateful that I started this career with Mushkil. And thank you so much. Good afternoon everyone, and thank you for being here. I think actually सब लोग सब कुछ बोल चुके हैं, but it was a amazing experience. और हम लोग horror shoot कर रहे थे, but हमने बहुत fun किया honestly. हाँ, बहुत ठंड थी और बहुत मुश्किल हुई थी हम लोगों को shoot करने के लिए. But I think end of the day हम सब satisfied थे because it's a good project and the team is amazing. I personally loved working with everyone, my co-actors, director, everyone. No, it's not a lie. So we all had fun, and I hope ki, everything goes well. So yeah, that's it. Thank you. Hello everyone, I don't know what to say, but I'm Mohammad Irfan. I've sung this song Ek Siva Tere in this movie, and it's a pleasure being here first of all. And it's a beautiful song by Vardhan. Thank you so much for letting me sing your song. And I hope this movie is a huge hit. And मैंने teaser देखा है, it's really promising. So I'm sure you all must have done a wonderful job. So looking forward to watch the movie. And before that, हमारा गाना आज release हुआ है, so please enjoy the song. नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं, खुद जवाब देते हैं, खुद सवाल करते हैं. नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं. और धन्यवाद राजीव रुइया जी को, आप सबको पूरी टीम को शुक्रिया करता हूँ. सब लोगों ने बड़ा खुशी से ये काम किया है एंड बनाते रहेंगे फिल्में, छोड़ेंगे नहीं. नेक्स्ट टाइम अगेन विल कम बैक विद अ न्यू प्रोजेक्ट. और व्हाट एल्स, सिर्फ एक इंसान ने तंग किया मेरे को, उसका नाम है नहीं सकता. मैंने कोई अपने आप को तंग किया. It was a beautiful adventure, like we venture to have a first project of bike and in a very comfortable way. It was a beautiful shoot. पता ही नहीं चला कि shooting हुई, खत्म हुई, कब क्या हुआ. Though we shifted so many locations, but we never felt there was any problem as such. Thank you everybody. Thank you Anand, Rajneesh, Rajiv. क्या नाम है? Pooja. Thank you very much. Thank you. Yeah, hi, I am Rajiv Ruya, the director of this film. पिक्चर का नाम है मुश्किल और पिक्चर एक हॉरर जॉनर की है. पिक्चर में एक्चुअली आपको है ना, आपने बहुत सी हॉरर फिल्म देखी होगी, लेकिन इसमें हमने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है. कुछ ग्रीस, कुछ यूरोप को और कुछ बनारस को कुछ मिक्सअप करके इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है. इस फिल्म में स्टार कास्ट में है रजनीश दुग्गल, कुणाल रॉय कपूर, नाजिया हसन, पूजा बिष्ट, शफाक नाज और अर्चना शास्त्री. ये पिक्चर के मेन लीड एक्टर है. पिक्चर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो है वरदान सिंह और रवि चोपड़ा, जिन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए, बहुत मेलोडी सॉन्ग दिए. पिक्चर की यूएसपी बहुत अच्छी गाने से ही है, गाने बहुत अच्छे पिक्चर के. मैं एक गाइड का रोल कर रहा हूँ. गाइड, टूर ऑपरेटर आप कह सकते हैं, जिनकी एक टूर कंपनी है और वो इंडिया से एक लड़कियों का एक ग्रुप आता है और वो उन्हें टूर के लिए लेके जा रहा है. और बेसिकली ही इज़ अ वेरी ब्रैश, ही इज़ अ वेरी फ्लर्टेशियस
और वेरी फन लविंग एंड आउटगोइंग काइंड ऑफ कैरेक्टर, और फिर ये जाके आगे जाके ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो ही इज़ ऑल्सो क्वाइट टेकन अबैक बाय द होल सिचुएशन, एंड that's pretty much his character. He's वो ग्रीस में पला बड़ा है, तो वो ग्रीक भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है. He's a kind of mixed breed. So it's been a fun character. There's some very nice songs, as Rajiv was saying, really interesting, fun songs in the film as well. So yeah, that's pretty much my character. See, मेरा कैरेक्टर एक ब्राह्मण का है. अबीर जो है ये बनारस में बेस्ड है. ही इज़ अ फन लविंग ब्राह्मण, बट विद टाइम क्योंकि सर्कमस्टांसेस उसके ऐसे हो जाते हैं उसके आसपास कि उसको इस तांत्रिक विद्या में और इन सब चीज़ों में घुसना पड़ता है, जहाँ पे वो सोल को कंट्रोल करना सीखता है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी नॉलेज गेन करता है जिससे वो इवेंचुअली एक घोस्ट राइडर बन जाता है. एंड आगे जाके कहानी में कहीं पे ऐसा कुछ होता है जहाँ पे he does come into help the guide and the 4 girls, and I would say that उसकी character की जो intensity है वो ही throughout is something which helps him to see souls, to go back into the past, and बाकी इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊँगा तो सारी पिक्चर ही रिवील हो जाएगी, एंड आई थिंक उसके लिए आपको मुश्किल देखनी पड़ेगी, जो कि 9 अगस्त को रिलीज़ हो रही है एंड सभी थिएटरों में आपके आसपास. एंड yeah, that's what I would like to request you all to see. No, this is my third horror film, and yeah, I have experienced something like this, but that was बचपन में था. मैं शिमला में था एक बार, और मेरी बुआ जो हैं, मतलब वहाँ पे होटल्स जो होते हैं -5, -4, -3 ऐसे लेवल्स पे होते हैं. तो बुआ जी रह रही थी -4 पे और हम लोग थे -5 वाले फ्लोर पे. एंड सडनली ऑब्वियसली हमने सुना हुआ था कि ये होटल जो है थोड़ा इसमें कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसे इशू होते हैं, एंड एक चीखने की आवाज़ आई, एंड सडनली जो है बुआ बाथरूम से बाहर भागते हुए आई. सब बच्चे नीचे आए, वी ऑल वर देयर, एंड तब हमें रियलाइज़ हुआ कि बुआ ने बेसिकली एक दीवार से दूसरी दीवार में घुसते हुए एक आत्मा को देखा, एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट द रिसेप्शनिस्ट हैड टोल्ड अस कि ऐसा कुछ हो सकता है. अगले दिन हम सबको लगा कि मजाक कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे दिस सेम थिंग हैपेंड विद मी. तो मैं ब्रश कर रहा हूँ एंड सडनली मैंने देखा कि मिरर में से कि पीछे से कोई इधर से निकल के इधर गई, एंड आई थिंक वो ब्रश को लेके अपने बैग को पकड़ के हम लोग सब शिमला से सीधा दिल्ली आ पहुँचे. एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस विद सोल्स, या जो भी आप कहना चाहें. एंड उसके बाद टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है. मैं बिलीव मतलब जब तक मैं अपने सामने में नहीं देखता हूँ, बिलीव करना मुश्किल है, पर ये सारी कहानियाँ सुन के एक क्यूरियोसिटी तो ज़रूर बिल्डअप होती है. हमारे साथ एक डोमेस्टिक हेल्प मैं जब मैं बड़ा हो रहा था, देयर वाज अ केस ऑफ पोजेशन, एंड माय मदर केप्ट सेइंग कि वो पोजेस्ड है क्योंकि वो अलग अलग आवाज़ें निकाल के बात करती थी, और वो अलग अलग एक्सेंट्स में बात करती थी, एंड ऑल्सो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो देयर वाज नो वे शी न्यू दोज लैंग्वेजेस ऑल्सो. तो वी सेड कि नहीं कुछ साइकोलॉजिकल होगा, मगर दे वर क्वाइट श्योर कि नहीं कुछ पोजेशन है. तो समटाइम्स जब आपके सामने भी है तब भी बिलीव करना मुश्किल होता है. इफ़ यू नो, because there are so many things in the mind, there are so many things that are unexplained, and I think कि horror plays on that one human thing कि जिसको आप explain नहीं कर सकते हैं, उसको आप horror बना सकते हैं, क्योंकि there are many things in our life which go unexplained, and I think those are opportunities for more and more horror films. एक मेरे साथ हुआ था बहुत केस. हम साथ में शूटिंग कर रहे थे बनारस में. जो हमारी हेयर ड्रेसर थी, एक हम लोग कोई बंगलों में कहीं पर शूटिंग कर रहे थे हम लोग. वहाँ पर कोई महल था, तो जो रामगढ़ का महल बनारस में, तो वहाँ पर जो हमारी हेयर ड्रेसर थी वो किसी रात को कोई सेल्फी वेल्फी ले रही थी, और सेल्फी ले रही थी तो सुबह अचानक पता चला कि उसका पेट इतना बढ़ गया. तो पता चला क्या हुआ, हम लोग को कुछ नहीं समझ आया. हम लोग वो बेड के नीचे आके छुप गई थी, सब आके उसको देख रहे थे, बेड से नहीं निकल रही थी, उसको खींच के निकाले थे, नहीं निकल रही थी. पता चला वो पोस्ट हो चुकी. तो फाइनली जब उसको वहाँ पर एक मंदिर में लेके गया, तो 5 आदमी को मंदिर में धक्का मार के उसको लेके आ रहा, मंदिर में जा रहे थे. और जब निकालने का दौर आया, तब जब निकाल रहे थे उसके अंदर से आत्मा, तो उसके अंदर से एक वॉइस आई थी जो मेल वॉइस थी,
जो बोल रही थी कि मैं राजा हूँ और मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ, और ये रियल केस हुआ, हमारे साथ में हुआ, सामने हुआ ये केस, और वैसे हुआ। जी -5 में तो थे, ये शूट कर रहे थे ये दोनों। मैं हफ्ते के बाद आया था, तब तक टेम्परेचर परफेक्ट हो गया था। आई थिंक बर्फ़ जो है पिघल गई थी। एक्चुअली जो है ना कि हम तो कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मगर जो एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं और वो कॉस्ट्यूम्स लेके वो उस टेम्परेचर्स में शूट कर रहे थे। हमारे तो वैसे भी स्कार्फ थे, जैकेट थे, फिर भी हम मैनेज कर रहे थे। बट आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू द एक्ट्रेसेस, ऑल द हीरोइंस ऑफ द फिल्म, हु सबके अलग अलग कपड़े थे, मगर समटाइम्स दे वर आल्सो ड्रेस्ड इन costumes that were not suitable for those weather conditions. So I think कि लियोनार्डो डी कैप्रियो को बहुत ये मिलता है, ऑस्कर मिलता है ये सब करने के लिए, मगर हमारे इंडियन एक्ट्रेसेस को भी देख लो भाई, वो साड़ी पहन के ये सब स्नो में गाना वाना करते हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। माइंड का खेल यूजुअली आप ठीक कह रहे हो कि हॉरर इज़ यूजुअली समथिंग जो आपके माइंड के साथ ही होता है। कभी कभी अंधेरा होता है अगले रूम में, एंड हम लोग सोचते हैं कि यार मतलब यू नो यू डू गेट स्केर्ड, या यू थिंक कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, या आप कभी मुड़ के जाते हैं और पीछे सडनली लगता है कि कुछ है। दिस इज़ ऑल इन द माइंड, बट जब सामने असली में आएगा तब क्या होगा। तो कभी कभार लोगों के सामने ऐसा होता है, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग व्हाट सर सेड, माइंड का गेम में पेट कैसे आगे आ जाएगा। सी बिकॉज व्हाट ही हमने तो सेड, रियल में देखा है कि मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, मे बी शिमला में बचपन में, वो शायद मेरी इमेजिनेशन थी, क्योंकि मैंने पिछले ही दिन बुआ के बारे में सुना था। बट ये जो था ये तो मैंने लाइव देखा था बनारस में, एंड दिस वाज समथिंग विच यू नो, उसकी पूरी ऐसे आंखें काली हो गई थी, पेट ऐसे निकला हुआ था, एंड आई रिमेंबर द इंसिडेंट एग्जैक्टली। उसमें उस दिन वो आई थिंक बाल धो के वहाँ पे बैठी हुई थी, किसी को मैसेज कर रही थी रात को, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। जैसे पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे मत बैठना रात को, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मज़ार पे बैठ के उसको पता नहीं था, उस पे बैठ के वो व्हाट्सअप कर रही थी। सी कुछ ना कुछ तो होता ही है, वरना इतनी हॉरर फिल्में क्यों बनती, ये भी आप सोचिए। जी ये एक फैमिली पंडित है। कहूँगा एक ब्राह्मण है, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, हाँ मतलब एक ब्राह्मण जो है वो भी शादी तो करते हैं एंड प्यार भी कर सकते हैं, बट एक कहानी आप एक्चुअली जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ क्या क्या होता है, एंड क्यों वो वहाँ से वहाँ पहुँचा। एंड आई थिंक या मेन चीज़ यही है। दिस इज़ माई थर्ड हॉरर फिल्म। मैंने 1920 की है, सांसें की है, और अब मुश्किल की है। आई लाइक ऑल ऑफ देम, आई रियली लाइक सांसें ऑल्सो। वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कुछ अप डाउन हो गया था, स्टिल यू नो द प्रोड्यूसर रिकवर्ड द मनी एंड टचवुड यू नो एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक। मुश्किल इज़ अ वेरी वेल मेड फिल्म। इसमें जैसा राजीव सर ने बोला कि और कुणाल ने बोला कि थोड़ी एक अलग किस्म की हॉरर है, एंड हॉरर अलग हो सकती हैं, क्यों नहीं। बट येस उसमें कुछ टिपिकल वैसे मोमेंट्स भी हैं जो हर हॉरर में होते हैं, तो आई थिंक वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर वाली चीज़ें भी आती हैं हर ऐसी फिल्म में, एंड वो इसमें भी हैं, एंड वो आपको आगे जाके फिल्म में देखकर पता चलेगा। इवेंचुअली किसी भी पिक्चर में से जब आप बाहर निकलते हैं और क्लाइमैक्स में आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, so that film works with the audience, and that's what we hope and we pray that you know this film also does. हाँ, I think ये जो अभी आपने वीडियो देखा, इसमें जो पहली लाइन में बोल रहा हूँ, तो ये लगभग माइनस आई थिंक कुछ 4 डिग्रीज होगा। -4 डिग्री। जब इन्होंने मुझे गली में से बस चल के आने को बोला और बोला कि ये पूरा आप लिप सिंक कर दीजिए, क्योंकि टंग जो है वो फ्रोजन थी, जीभ आपकी जम चुकी थी, एंड आपको पूरा वो गाना लिप सिंक करना है। सो दैट बिकेम अ लिटिल technically challenging. नहीं, I want to do, but the thing is कि how राजीव सर has imagined me कि इस तरह का रोमांस भी कर सकता है, and I've never done a song where I'm being so romantic and so sort of like a traditional kind of song, and I think कि even for an actor it's really nice to keep reimagining what you see yourself as, and I think कि sometimes you meet directors who also reimagine you, and that's a very helpful thing. तो hopefully I'll get to do more such songs, मगर I think पहली बार मेरी करियर में ऐसा मौका मिला है, और hopefully आगे जाके और भी मौके मिलेंगे। जी वो उस टाइम वर्क की थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एंड में हनुमान चालीसा यूज़ होगी। सो इसमें भी अभी हम ये नहीं बता सकते कि व्हाट आर वी गोइंग टू यूज़, बट हनुमान चालीसा नहीं है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। एंड बनारस से तो आप सोचिए कि किसको यूज़ किया होगा।
सर ने हॉरर फिल्म बनाई है, बट हमारे सर बहुत खुश मिजाज हैं और बहुत ही हैप्पी हैं। मैंने फिल्म देखी, मैं वापस आ गया, बाहर आ गया, डर के मारे, इतना डर था, मैं पूरी पिक्चर देख नहीं सका, और बनते हुए तो मैं वहाँ बैठ ही सकता था जब बना रहे थे। इट वॉज रियली डर लग रहा था मुझे इतना। आप जब शूट कर रहे होते हो ना, आप जब सीन में होते हैं और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई पोजेस्ड हो रहा है, सो एज अ परफॉर्मर आपका बहुत एनर्जी लगती है आपकी, और यू नो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है शूट करने के लिए, मेंटली फिजिकली। सो दैट वाज द वन थिंग, एंड बाकी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ हॉरर फिल्म, हॉरर जॉनर, और मुझे बहुत अच्छा, मैं पर्सनली मैं देखती भी बहुत हूँ हॉरर, सो आई रियली इन्जॉय शूटिंग हॉरर। आई एम अ डाई हार्ड हॉरर फिल्म्स फ़ैन, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 500-600 हॉरर फिल्म्स तो देखी होंगी। सो शूटिंग फॉर वन इज़ ऑफकोर्स वेरी एक्साइटिंग, एंड जहाँ तक मेरा किरदार है, आई एम प्लेइंग निभाना, विच इज़ शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल जो बॉम्बे आती है। सो देयर इज़ अ ट्रांजिशन इन माई कैरेक्टर कि एक स्मॉल टाउन गर्ल हाउ शी ग्रूम्स हरसेल्फ एंड एक मेट्रो सिटी में आके, एंड देन शी ट्रैवल्स विद हर फ्रेंड्स टू ग्रीस, एंड ग्रीस में आके जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, हाउ दे हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ रजनीश हु इज़ प्लेइंग द सेवियर फॉर ऑल ऑफ अस। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे कैरेक्टर का नाम तब्बू है, और हम लोग जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं, एंड आई थिंक कैरेक्टर से ज़्यादा कैसे इनिशियली सब लोग हॉलीडे के लिए गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और बाद में कैसे कैसे चीज़ें सिचुएशंस होती हैं, चेंज होता है, और कैसे सब एक हम चारों जो फ्रेंड्स हैं हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं। आई थिंक दैट इज़ यू नो गुड थिंग। और बाकी शूटिंग करना, लाइक आई सेड कि मुझे हॉरर बहुत पसंद है, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। माय कैरेक्टर इज वेरी लाइवली, ये बंदी एक है बस छुट्टी बनाने आई है, एक बेटी किसी रूम पे नहीं, यू नो सबके साउंड ट्रैक साइड ट्रैक चल रहा है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हर एंड मी, हम लोग दोनों बेसिकली एंजॉयिंग आवरसेल्फ, एंड एक्सपीरियंस वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोकेशन पे हमने शूट किया था, वेरी वर्जिन लोकेशन, मतलब ये जगह जुमेर प्लेस है मैपिंग, जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा शूटिंग की पिक्चर। एक छोटा सा टाउन है, और एज मुझे भी हॉरर पिक्चर बहुत पसंद आती है, लव हॉरर मूवीज। तो आई नो फॉर वन थिंग इज दैट कि आपका सेटअप है जहाँ वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टोरी, और फॉर्चुनेटली हमारे लिए आई फील अभी जब हम वहाँ पहुँचे थे तो बर्फ़ पड़ने लगी थी, दैट वॉज नॉट इन द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, इट वॉज़न्ट सपोज्ड टू स्नो। आई बीन वेरी एक्साइटेड, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे थोड़े स्पूक्स हो जाएंगे, बिकॉज यू नो पीपल लाइक टू स्पूक देमसेल्व्स, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आई मीन उस चक्कर में हम लोग की साइड में कोई ना कोई कहानियाँ चलती रहती थी, तो मुश्किल हमारे लिए मुश्किल ये था कि I think the script was ready when I met Rajiv. He was almost ready to do this film. So I didn't want it to waste time. तो मैंने कहा जब सब कुछ तैयार है तो why not? And it was just destiny ऐसे destiny. आप जितना इसमें दिखा सकते हैं उसमें लाइक आप रोमांटिक फिल्म में नहीं दिखा सकते। We are coming with a music company, Big Bad Music. Yeah, just launching it very soon. The Navraj Hans song. राजीव सर जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने मुझे कहा था कि वरदान मुझे हार्ड कोर रोमांटिक नंबर चाहिए, थ्रिलर बना रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि अच्छे रोमांटिक नंबर्स करूँ। फिल्म में मैंने 2 गाने किए हैं, जो एक मोहम्मद इरफान साहब ने एक गाना गाया और वन सॉन्ग संग बाय मी, तो दोनों ही गाने अच्छे हुए हैं। तो एक सॉन्ग आज रिलीज़ हुआ है, आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि इस फिल्म मुश्किल में जो मैंने गाना गाया है, इट्स ब्यूटीफुली कंपोज बाय वरदान और सागरी साहब का लिखा हुआ, तो बहुत अच्छा गाना है। उम्मीद करूँगा कि आप सारे लिसनर्स को पसंद आएगा। एक सेवा तेरे फिल्म में कुल 3 गाने हैं, तीनों ही रोमांटिक नंबर्स हैं, और जैसा कि एक हॉरर फिल्म में अभी तक देखा गया है कि गानों की एक यूएसपी होती है, गाने यूएसपी होते हैं, तो इस फिल्म में भी हमने कोशिश की है कि अच्छे गाने करें, और होपफुली सबको आज जो गाना रिलीज़ हुआ है सबको पसंद आए और अच्छा लगे। ऐसा कोई ड्रीम जॉनर मेरा नहीं है, बट मैं तो चाहता हूँ कि
कोई भी गाना मुझे जो ऑफर हो उसकी धुन बहुत ही खूबसूरत हो और उसके अल्फाज अच्छे हो, ये दो चीज़ें जब होती है तो फिर वो गाना किसी भी जॉनर में चला जाए अच्छा ही लगता है। एक सिवा तेरे मैं क्या सोचूं, अब सिवा तेरे मैं क्या देखूं, तू मुझ में इतना बिखरा है, रूह तक तू मेरी उतरा है। मेरी चाहत का ये वादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा